پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ 30 جون کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ دوحہ میں ایران سے ملاقات شاید اہم ہو شاید نہ ہو، ہمیں جلد معلوم ہو جائے گا، جبکہ ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ امریکہ نے معاہدے کی پاسداری کی تو ہم بھی کریں گے۔ But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning. وینزویلا میں زلزلوں کے بعد 1700 سے زائد ہلاکتوں کی تصدیق، ہزاروں تاحال لاپتہ۔ ابھی تک ہم صرف 3 کو نکال سکے ہیں۔ سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ ہم ان کا اہتمام سے کفن دفن بھی نہیں کر سکیں گے جس کے وہ حقدار ہیں۔ انڈیا کی افغانستان پر پاکستانی حملوں کی مذمت، کہا یہ افغانستان کی خود مختاری پر حملہ اور علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے افغانستان کے جو سرحد کے قریب علاقے ہیں پکتیکا، پکتیا اور کنر میں، وہاں پر فضائی حملے کیے ہیں، اور پاکستان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس میں جو ملیٹنٹس ہیں ان کے ہائیڈ آؤٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر پیش رفت، امریکی فوجی حکام کی لبنان میں اعلیٰ سطحی ملاقاتیں۔ But an important and essential and a necessary one, and we're very proud to be a part of it. پاکستان کے صوبے پنجاب میں عادی مجرموں اور سماج مخالف رویوں سے متعلق متنازع بل کیا ہے اور اس پر تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ آپ سر اس کو دیکھیں، یہ سب میرے بھائی جو ادھر بیٹھے ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، یہ آپ نے ابھی خود ہی کہا ہے کہ یہ تو ایک چھوٹے سے ایکٹ پہ پھنس جائیں گے۔ آپ نے اس کا رواج دیا ہے کہ 1908 مجھے رانا صاحب، کیونکہ میں نے ابھی ان کو یہ اسمبلی سیکریٹریٹ کو سیریس کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ اگر بل چاہے وہ اپوزیشن ممبر کا ہے یا گورنمنٹ کا ہے، مجھے آپ نے اس کو دینا تو ہے نا، میری نظر سے گزرا ہی نہیں ہے۔ لیٹ می چیک اٹ۔ ممبئی میں محرم کے جلوس میں مبینہ طور پر چوہے مار زہر والے کیپسول تقسیم کرنے والا شخص گرفتار۔ صبح 4 بجے پولیس اسٹیشن میں ایک MLC آئی جس کے اندر سلمان سید نام کے ویکتی کی طبیعت خراب ہونے کا ذکر تھا، اس کو الٹی اور اس کو پیٹ درد ایسی شکایتیں تھیں، اور اس نے مینشن کیا تھا کہ اس نے اس پروسیشن میں بڑھ رہی ایک کیپسول کا سیون کیا ہے۔ جانیے جنگ عظیم دوم کے بعد تباہ حال اٹلی میں جنم لینے والا چھوٹا سا ویسپا اسکوٹر دیکھتے ہی دیکھتے ایک عالمی ثقافتی اور فیشن آئیکن کیسے بن گیا۔ بہت سے شائقین کا کہنا ہے کہ یہ اسکوٹر انہیں ایک گزرے ہوئے دور کی یاد دلاتا ہے، ایک ایسے دور کی جسے انہوں نے خود دیکھا بھی نہیں۔ واٹس ایپ کا نیا یوزر نیم فیچر، فون نمبر شیئر کیے بغیر رابطہ ممکن، مگر اس کا موازنہ ٹیلی گرام اور سگنل سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ جلدی سے اپنا یوزر نیم کریٹ کر لو، میک یور موو۔ آن لائن دنیا میں آف لائن ہونے کا تجربہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیے ڈیجیٹل ڈیٹاکس کا ایک دلچسپ تجربہ۔ میں فون یوز نہیں کر رہی ہوں، فون ہی مجھے یوز کر رہا ہے۔ میں پہلے اپنے فون کو اپنے آپ سے دور رکھوں گی، اب میں اس فون کو یوز کرنے والی ہوں۔ ان 2 دنوں میں میں صرف اسی فون کو یوز کروں گی جس میں میری سم نکال کر اس میں سے میں اس میں ڈالنے والی ہوں۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں بڑے اپسیٹ، ناک آؤٹ مرحلے میں جرمنی اور نیدرلینڈ مقابلے سے باہر۔ This is the best freaking experience we have ever had. This generation have not seen this level of football, this what I need. Energy. ملیے اٹلی میں بچوں کو حملہ آور سے بچانے والے ہیرو آف بریشیا سے۔ اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایران کے ساتھ متوقع ملاقات شاید اہم ہو شاید نہ ہو، تاہم ان کے بقول آئندہ چند گھنٹوں میں یہ واضح ہو جائے گا کہ مذاکرات کس سمت میں آگے بڑھتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معاملات پر ہونے والا اجلاس دوحہ میں متوقع ہے اور امریکہ اس عمل کو مثبت انداز میں دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس محاذ پر کافی اچھی پیش رفت کر رہے ہیں، لیکن یہ ملاقات کتنی اہم ثابت ہوتی ہے اس کا اندازہ جلد ہو جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر اس موقف کا اعادہ کیا کہ امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ان کا کہنا تھا عسکری اعتبار سے ہم
अपनी पोजीशन मजबूत कर चुके हैं। हम सिर्फ एक बात चाहते हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो, और ऐसा नहीं होगा। सदर ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इंसाफ के साथ देखा जाए तो ईरान भी इस मकसद पर आमादगी जाहिर कर चुका है, अगरचे उन्होंने इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। Prior to the denuclearization of Iran fight that we have, which we're doing very well, there'll be a meeting on that tomorrow in Doha, and they're going to Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. They've agreed to that, in all fairness. दोहा में मुमकिन मुलाकात के बारे में वाशिंगटन और तेहरान के बयानात में अब भी वाज़ेह तज़ाद मौजूद है। एक रोज कबल सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि ईरान ने मुलाकात की दरखास्त की है और ये मुलाकात दोहा में होने वाली है। इसके बरक्स ईरान की तकनीकी मुज़ाकराती टीम के सरबराह काजिम गरीब आबादी ने इस दावे की तरदीद करते हुए कहा कि मंगल को किसी किस्म के मुज़ाकरात तय नहीं है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी कहा कि आइंदा चंद रोज के दौरान अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी भी सतह पर मुलाकात का कोई प्रोग्राम मौजूद नहीं। बाद व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लीविट ने अमेरिकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में तस्दीक की कि अमेरिकी नुमाइंदा स्टीव विटकोफ इस हफ्ते दोहा में होने वाले आला सतही इजलासों में शिरकत करेंगे। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि आया उनकी ईरानी हुकाम से बराह रास्त मुलाकात भी मुतवक्के है या नहीं। इस तमाम सूरत हाल के बाइस दोहा में मुतवक्के सिफारती सरगर्मियों पर आलमी तवज्जो मरकूज हो गई है। एक जानिब वाशिंगटन मुज़ाकरात में पेशरफ्त के इशारे दे रहा है, जबकि दूसरी जानिब तेहरान मुसलसल ऐसी किसी बाज़ाब्ता मुलाकात की तरदीद कर रहा है। ताहम ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अगर अमेरिका मुआहिदे की पासदारी करेगा तो हम भी अपनी जिम्मेदारियों पर अमल करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि बाहमी इत्तफाक राय एक दो तरीफा अमल है। उन्होंने मजीद कहा कि बेबुनियाद धमकियों के जवाब में हमारा तर्ज अमल यह है कि फैसला साजी में अकल और इंसानी वकार पर इनासार किया जाए और जब अमल का वक्त आए तो फैसला कुन अंदाज में बहादुरी से दिफा किया जाए। वाज़ेह है कि MOU यानी मफाहमती याददाश्त के तहत ईरान ने 60 दिन तक तिजारती जहाज़ों की महफूज और बिला रुकावट आमदोरफ्त को यकीनी बनाने पर इत्तफाक किया था। ताहम 2 हफ्ते से भी कम अरसा कबल तय पाने वाली जंग बंदी पर मुसलसल दबाव बरकरार है। इस हवाले से जॉन इनवुड की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं एहसन महमूद। ईरान एक पैगाम देना चाहता है। इस वीडियो के बारे में दावा किया गया है कि इसमें नज़र आने वाले मिसाइल कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर दागे गए हैं। ये हमले ईरानी सरजमीन पर इससे पहले होने वाले अमरीकी हमलों के जवाब में किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि इन्होंने निगरानी, मवासलात, ड्रोन और बारूदी सुरंगें बिछाने की तंसीबात को निशाना बनाया है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, एक वक्त ऐसा आ सकता है जब हमारी अक्ल काम करना छोड़ दे और मकसद के हसूल के लिए फौजी ताकत पर मजबूर होना पड़े। अगर वो वक्त आया तो फिर इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद नहीं रहेगा। इन हमलों और जवाबी हमलों से पायदार अमन के हसूल की कोशिशें खतरे में पड़ रही हैं। ईरान के लिए इसका मतलब आबनाए हुर्मुज़ पर अपने नए कंट्रोल को बरकरार रखना है। हर गुने दखलत दर इन अम्र आबनाए हुर्मुज़ के मामले में किसी भी मुदाखलत या अलग इंतजामात की कोशिशों से मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होंगी। आबनाए हुर्मुज़ को खोलने में ताख़ीर होगी और कशीदगी और तसादुम की सतह मज़ीद बढ़ेगी, जैसा कि गुज़श्ता 2 रातों में हुआ। एक और पेचीदा अंसर लबनान है। ईरान चाहता है कि वहाँ तमाम लड़ाई बंद हो जाए, जैसा कि वसीतर मुआहदे में तय पाया था। दूसरी जानिब इजराइल ईरानी इत्तेहादी मुसल्लह गिरोह हिज़्बुल्लाह पर दबाव बरकरार रखना चाहता है। इतवार के रोज़ इजराइल ने चंद दिनों की खामोशी के बाद एक फ़िज़ाई हमला किया। ये पहले ही नाजुक और मुश्किल अमन के अमल में एक और बड़ी रुकावट है। लेकिन यरूशलेम में मौजूद BBC के मशरक़ वस्ता के नामा निगार जॉन डॉनसन का इस हवाले से कहना है कि फ़िलहाल ये कहना कि मुआहदा टूट रहा है कबलस वक्त है। फिलहाल ये कहना कि मुआहदा टूट रहा है कबल अज़ वक्त है, मगर ये यकीनी तौर पर शदीद दबाव में है।
پھر جنوبی لبنان کی صورتحال بھی ہے جس کے بارے میں ایران کا کہنا ہے کہ اسے وسیع تر سیز فائر کا حصہ ہونا چاہیے۔ اسرائیلی افواج اب بھی جنوبی لبنان کے ایک بڑے حصے پہ قابض ہیں، جبکہ حزب اللہ نے اس معاہدے پہ دستخط ہی نہیں کیے، اس لیے وہاں جاری لڑائی کے اس عمل کو پٹڑی سے اتار دینے کا خدشہ بھی موجود ہے۔ اب بھی انتہائی مشکل امور پر بہت سی پیچیدہ بات چیت ہونا باقی ہے، جن میں ایران کا جوہری پروگرام، خطے میں حزب اللہ جیسی پراکسی گروہوں کی حمایت اور اس کے بلسٹک میزائل پروگرام شامل ہیں۔ مفاہمتی یادداشت کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ان معاملات پر پیش رفت کے لیے صرف 60 دن دیے گئے ہیں۔ یہ زیادہ وقت نہیں، جبکہ نہایت پیچیدہ اور تفصیلی مذاکرات ہونا ابھی باقی ہیں۔ وینزویلا میں 6 روز قبل یکے بعد دیگرے آنے والے شدید زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد جہاں 1700 سے بڑھ گئی ہے، وہیں ملبے تلے دبے افراد کے زندہ بچنے کی امید بھی دم توڑنے لگی ہے اور ہلاک شدگان کی تعداد میں بڑے اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بدھ کو ملک کے شمالی حصے میں آنے والے ان زلزلوں سے دارالحکومت کراکس سمیت بڑے علاقوں میں عمارتیں تباہ ہوئی، جن کے ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کا عمل جاری ہے اور اتوار کے روز ملبے سے 33 افراد کو زندہ نکالا بھی گیا۔ ایک برطانیہ کے ریسکیو اہلکار کے مطابق ایسے حالات میں متاثرین کے زندہ نکلنے کی مدت 96 گھنٹے تک سمجھی جاتی ہے، جو اتوار کی شام ختم ہو گئی اور اب امدادی کارکنوں کو معجزات کی امید ہے۔ تلاش اور بچاؤ کے عمل میں حصہ لینے کے لیے غیر ملکی ٹیموں کی وینزویلا آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار نے بتایا کہ سینکڑوں بین الاقوامی امدادی کارکن وینزویلا پہنچ چکے ہیں، جبکہ مزید کی آمد متوقع ہے۔ تاہم ملبہ اٹھانے کے لیے درکار مشینری کی قلت ایک بڑا مسئلہ بن کر سامنے آئی ہے۔ مزید تفصیل عالیہ نازکی سے۔ کاچیا لامار میں جہاں سب سے زیادہ تباہی مچی ہے، صبح کا وقت ہے، لیکن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ہم اس علاقے میں آسانی سے پہنچ گئے تھے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ریاستی اداروں کو کوئی جلدی نہیں۔ اس تباہ شدہ عمارت میں ایک وفادار دوست اب بھی انتظار کر رہا ہے۔ رشتہ دار امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ان خواتین کو پتہ ہے کہ ان کی بہن ملبے تلے دبی ہوئی ہے۔ جو بے گھر ہوئے ہیں ان کے لیے ایک اور مشکل دن کا آغاز۔ ولمر نے اپنے 8 پیاروں کو کھو دیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر اب بھی اپنے ہی گھروں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ ابھی تک ہم صرف 3 کو نکال سکے ہیں۔ سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ ہم ان کا اہتمام سے کفن دفن بھی نہیں کر سکیں گے جس کے وہ حقدار ہیں، اور اس سب کے اوپر حکومت نے سڑکیں بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے امداد کا پہنچنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ کل ہم نے صبح 6 بجے سے شام 4 بجے تک یہاں آنے کی اجازت کا انتظار کیا۔ بہت وقت ضائع ہوا۔ مقامی لوگ یہاں کئی دنوں اور راتوں سے انتظار کر رہے ہیں، اس امید میں کہ ان کے پیاروں کی لاشیں مل جائیں گی۔ اس ملبے کے ڈھیر پر علاقے کے مزید کچھ مکین بھی موجود ہیں۔ ایک شخص نے اس تباہ شدہ ملبے کے نیچے اپنے والد کی لاش کو ڈھونڈ لیا ہے، مگر اس کے پاس انہیں نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے اپنے ہاتھوں کے۔ یہاں سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات صرف تباہی کی شدت نہیں بلکہ بڑے پیمانے پر کسی بھی سرکاری مدد کا مکمل فقدان ہے۔ ریاست کا یہاں کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اپنے پیاروں کو کھونے کے دکھ سے گزر چکے ہیں اور اب انہیں خود ہی ان کی لاشیں نکالنے کی کوشش کرنا پڑ رہی ہے۔ اور اس تمام تباہی کے درمیان نومولود بچے گیل گارسیا کی دیکھ بھال اس کی دادی لیڈی زمین پر بچھے ایک گدے پر کر رہی ہیں۔ اس کی ماں ایلیانا نے زلزلے کے 11 گھنٹے بعد اسے سڑک پر ہی جنم دیا تھا۔ لیڈی کو اپنی دوسری بیٹی انجیلس اور اس کے 3 بچوں کے بارے میں اب تک کوئی خبر نہیں ملی، اور قریب ہی 79 سالہ ایوان نے گرم جوشی سے ہمارا خیر مقدم کیا، جبکہ وہ خود صبر کے ساتھ مدد کے آنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ How do you think about what the government has done? آپ کی نظر میں جب سے یہ حادثہ ہوا ہے حکومت کس چیز میں کامیاب رہی ہے اور کس میں ناکام؟ دیکھیں، میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی جس کے بعد مجھے مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ میں بچ گئی ہوں اور اب بھی یہاں ہوں۔ یہ سب خدا کی مرضی سے ہوا، لیکن مجھے حیرت ضرور ہے کہ ہمارے گورنر نے اب تک اپنی شکل تک نہیں دکھائی۔ 5 دن ہو چکے ہیں۔ کل بعد میں وینزویلا کے نیشنل گارڈ کے چند اہلکار بہت معمولی سی امداد لے کر پہنچے، لیکن اس بچے کے لیے مدد وقت پر پہنچ گئی۔
इमदादी कारकुन मलबे के नीचे से निकाले गए इस कमजोर जिस्म को बड़ी एहतियात से उठाए हुए थे। इसके साथ उसके वालिद को भी निकाल लिया गया। ये दोनों जुमेरात से जिंदा मलबे तले दबे हुए थे। ये मनाज़िर यहाँ मौजूद बेशुमार मायूस ख़ानदानों के लिए उम्मीद की एक किरण है, लेकिन ऐसे मुआवजे बहुत कम हैं। इंडियन वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में इतवार की शब अफगानिस्तान पर किए गए पाकिस्तान के फिजाई हमलों की मजम्मत की गई है। 29 जून को जारी किए गए बयान में पाकिस्तान के हमलों को खुली जारहियत, अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला और खित्ते के अमन और इस्तेकाम के लिए खतरा करार देते हुए कहा गया कि इसके नतीजे में मुतअद्दिद शहरी हलाक हुए हैं। जबकि पाकिस्तान का दावा है कि इतवार की शब मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर पाकिस्तानी फोर्सेज ने अफगानिस्तान के इलाके पक्तिका, पक्तिया और कुनड़ में जमातुल और तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुंसलिक 3 अहदाफ को निशाना बनाया और 25 शिद्दत पसंदों को हलाक किया। ताहम अफगान तालिबान के तर्जुमान ने इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तानी फौज के फिजाई हमलों में सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 36 अफराद हलाक जबकि 163 जख्मी हुए हैं। अफगान तालिबान का यह भी दावा है कि हलाक और जख्मी होने वाले तमाम आम शहरी हैं। इंडियन वजारत खारजा के बयान के मुताबिक इंडिया अपने अजीजों को खोने वाले अफगान खानदानों से ताज़ियत का इजहार और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करता है। बयान में कहा गया कि इंडिया अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा करता है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हमलों पर अपने बयान में इंडियन वजारत खारजा ने मजीद कहा, यह पाकिस्तान के मुसलसल गैर जिम्मेदाराना रवैये और अपनी दाखिली नाकामियों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराने के लिए सरहद पार तशद्दुद का सहारा लेने की नाकाम कोशिश की अक्कासी करता है। इस बारे में देखिए पाकिस्तान से अजीजुल्लाह खान और अफगानिस्तान से ओरिमा बारेज की ये मुश्तरका रिपोर्ट। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उन्होंने अफगानिस्तान के जो सरहद के करीब इलाके हैं पक्तिका, पक्तिया और कुनर में वहाँ पर फिजाई हमले किए हैं और पाकिस्तान ने ये दावा किया है कि इसमें जो मिलिटेंट्स हैं उनके हाइड आउट्स को निशाना बनाया गया है। इन मिलिटेंट्स में जमातुल अहरार, TTP और जो दीगर शिद्दत पसंद तंजीमें हैं उनके ठिकानों का जिक्र किया गया है और इसमें यह कहा जा रहा है कि 25 मिलिटेंट्स हैं वो हलाक हुए हैं। पाकिस्तान की जानिब से जो ये कार्रवाई की गई है, ये 2 रोज़ पहले कराची में रेंजर्स के जो एक कैंप है वहाँ पर एक अटैक हुआ था और उसमें बुनियादी तौर के ऊपर जो कुछ हलाकतें भी हुई थी, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी हलाक हुए थे और जो मिलिटेंट्स हैं उनकी कार्रवाई को हुकूमत ने कहा था कि उनको नाकाम बना दिया गया था और इसमें एक जख्मी को भी गिरफ्तार किया गया था जिसने कहा था कि उन्होंने इस हमले की जो प्लानिंग है ये अफगानिस्तान में की थी और वो बाजोड़ के रास्ते वो यहाँ पर कराची पहुंचे थे और उन्होंने ये कार्रवाई की है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ये कशीदगी है ये कुछ अरसे से जारी है और इसके लिए उनकी जो सालिसी के लिए कोशिशें भी मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से हुई हैं, जिनमें कतर, तुर्की, चाइना ने भी कोशिशें की और इसके लिए सीज फायर भी यानी जंग बंदी भी हो गई थी, लेकिन वो जंग बंदी फिर कामयाब नहीं हो सकी और फिर दोनों जानिब से ये क्लैशेज हुई हैं। अफगानिस्तान ने भी चंद रोज़ पहले ये दावा किया था कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर खैबर और बलूचिस्तान के इलाकों में वहाँ पर कार्रवाई की है ड्रोन के ज़रिए, लेकिन उसकी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी है। पाकिस्तान की जानिब से ये दावा किया जाता रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर ऐसी मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर आकर कार्रवाइयाँ करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने यह भी कहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और जो सिंध में ये कार्रवाइयाँ हुई हैं इसके जो ताने बाने हैं ये अफगानिस्तान से जा मिलते हैं, लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से इन तमाम दावों की तरदीद की गई है। अफगानिस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर जो हमले किए गए हैं ये बुज़दिलाना कार्रवाई थी और इसमें जो सिविलियंस हैं उनका ज़्यादातर जानी नुकसान हुआ है। मज़ीद जो इस बारे में तफसील है वो हमारे साथी अफगानिस्तान से दे रही हैं। हम इस वक्त काबुल के एक बड़े अस्पताल के ICU सेक्शन में हैं जहां गुज़श्ता रात के फ़िज़ाई हमले के ज़ख्मियों का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों ने हमें बताया है कि 24 ज़ख्मियों को कल रात लाया गया है, जिनमें कुछ की हालत तशवीशनाक है, जिनका ऑपरेशन करके ICU में शिफ्ट कर दिया गया है। इनमें 3 बच्चे हैं जिनको बच्चों के खसूसी अस्पताल भेज दिया गया है।
एनी शाहिदीन ने बताया है कि गुज़श्ता रात मशरकी सूबे कुनड़, पक्तिया और पक्तिका में फ़िज़ाई हमले किए गए हैं। In Kunar, Paktia and Paktika. Most of the casualties have happened in ज़्यादा जानी नुकसान पक्तिया के मंदी खेल इलाके में हुआ है, जहां एनी शाहिदीन के मुताबिक बम एक मकान में गिरा और जब लोग इमदाद के लिए वहां पहुंचे तो दूसरा धमाका हुआ और इस दूसरे हमले में 28 लोग हलाक हुए हैं। Then a second strike happened and around 28 people were killed in the second strike. The Taliban government here say तालिबान हुकूमत का कहना है कि 36 अफराद इन हमलों में हलाक हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में हुकाम का कहना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जमात अल अहरार के ठिकानों पर हमले किए हैं, लेकिन तालिबान हुकूमत ने इन दावों की तरदीद की है। one of its offshoots here in Afghanistan. That's a claim which the Taliban government have always denied. लेबनान और इसराइल के दरमियान अमरीकी सालिसी में तय पाने वाले जंग बंदी के फ्रेमवर्क मुआहदे पर अमल दरामद के लिए सिफारती और अस्करी राब्तों में तेजी आ गई है। लेबनानी फौज के बयान के मुताबिक आर्मी कमांडर रोडोल्फ हैकल ने खित्ते में अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर से मुलाकात की, जिसमें लेबनान और पूरे खित्ते की ताज़ा तरीन सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने लेबनान और इसराइल के दरमियान तय पाने वाले फ्रेमवर्क मुआहदे के मुअस्सर और कामयाब निफाज की अहमियत पर जोर दिया। दूसरी जानिब लेबनान के सदर जोसेफ ओन ने भी सदारती महल में एडमिरल ब्रैड कूपर, अमेरिका के नाज़ुमुल अमूर और जंग बंदी के तरीक़ाकार की निगरानी करने वाले टीम के सरबराह जनरल जोसेफ क्लियर से मुलाकात की। सदर के दफ्तर के मुताबिक मुलाकात में मुआहदे पर अमल दरामद के लिए इंतजामात और आइंदा के लाए अमल पर तफसीली बातचीत हुई है। सदर जोसेफ ओन ने इस मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लेबनान में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए अमरीकी ताउन पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस अज़म का अदा किया कि लेबनानी हुकूमत अपनी मुसल्लह अफवाज के जरिए जनूबी सरहद तक रियासती अमलदारी को मुकम्मल तौर पर बहाल करने के लिए पुरअज़म है। ताहम इस मुआहदे पर लेबनान के अंदर इख्तलाफात भी सामने आए हैं। लेबनान की पार्लियामेंट के स्पीकर नबीहा बरी, जो हिजबुल्लाह के करीबी इत्तेहादी समझे जाते हैं, ने फ्रेमवर्क मुआहदे पर तनकीद करते हुए इसकी मुखालफत की है। उधर हिजबुल्लाह ने भी हुकूमत के इसराइल के साथ मुज़ाकरात और मुआहदे को लेबनान के आइन से मुतसादिम करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है, जिससे जाहिर होता है कि मुआहदे पर दाखिली सियासी इत्तेफाक के राय ताहाल कायम नहीं हो सका है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में आदि मुजरिमों और मुबैना तौर पर समाज मुखालिफ सरगर्मियों की रोकथाम के लिए पेश किए गए एक मुजव्वज़ा कानून ने सियासी, कानूनी और इंसानी हुकूक के हलकों में नई बहस छेड़ दी है। पंजाब हुकूमत का कहना है कि पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर एक्ट 2026 का मकसद ऐसे अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाई करना है जो मुसलसल जराइम, कब्जागिरी, मनशियात फरोशी, जालसाजी और दीगर समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस रहते हैं। ताहम अपोजिशन और इंसानी हकूक की तंजीमों का मौक़िफ़ है कि इस कानून की बाज़ शिकें शहरी आज़ादियों और बुनियादी हकूक को मुतासिर कर सकती हैं। तनकीद के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ऐलान किया है कि बिल को मज़ीद गौर के लिए दोबारा पंजाब असेंबली की मुतालिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि इस पर मज़ीद कार्रवाई अगस्त 2026 तक मौखर कर दी गई है। ये बिल उस वक्त तवज्जो का मरकज़ बना जब पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान ने इजलास के दौरान हैरत का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि ये बिल ऐवान में पेश होकर कायमा कमेटी को भेजा भी जा चुका है। बाद ऐसा उन्होंने वजाहत की कि 8 जून को होने वाले इजलास की सदारत वो नहीं बल्कि पैनल ऑफ चेयर के रुकन इफ्तिखार अहमद छचर कर रहे थे, इसलिए ये कार्रवाई उनके नोटिस में नहीं आ सकी। I don't know it. I take a very serious objection to this. आपने जो बात की है वैसे मेरे लिए it is not to my knowledge at all, but this media report जो आपने मुझे भेजी है, मैं इस मीडिया रिपोर्ट को पढ़ने के बाद इस लॉ के एतबार से मैं लॉ देखूंगा तो पता चलेगा, हो सकता है कि मिस रिपोर्ट ना हुआ हो। मुजव्वज़ा कानून के तहत सूबाई, डिवीजनल और ज़िली सतह पर इंटेलिजेंस कमेटियां कायम की जाएंगी, जिनमें पुलिस, सिविल इंतजामिया और खुफिया इदारों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। ये कमेटियां मुख्तलिफ शिकायत, पुलिस रिपोर्ट्स और इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर किसी शख्स के तर्ज़ अमल का जायजा ले सकेंगी और अगर शवाहिद मौजूद हों तो उसे समाज मुखालिफ रवैयों या आदि मुजरिमों के ज़ुमरे में शामिल करने की सिफारिश कर सकेंगी। बिल में समाज मुखालिफ रवैयों में मनशियात फरोशी, जुआ खाना
बनाना और कहवाखाना चलाना, जाली दस्तावेजात तैयार करना, झूठी गवाही देना, कब्जागिरी, सरकारी एहलकारों के साथ बदउनवानी, खैरात के नाम पर धोखाधड़ी, असले की नुमाइश, खवातीन और कम उम्र लड़कियों को हिरासा करना, अफवाहें फैलाना और अवामी नज़म में खलल डालने जैसी सरगर्मियों को शामिल किया गया है। बिल के मुताबिक अगर कोई शख्स एक से ज्यादा मरतबा किसी जुर्म में गिरफ्तार हुआ हो या उसके बारे में मुसलसल मुजरिमाना या समाज मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने की इतलात मौजूद हों तो जिले इंटेलिजेंस कमेटी मुतल्लिका DPO के जरिए मजिस्ट्रेट से उसे आदी मुजरिम करार देने की दरखास्त कर सकती है। और अगर अदालत किसी शख्स को आदी मुजरिम करार दे देती है तो उस पर कम अज कम 3 माह के लिए इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस पहनने, जमानती बॉन्ड्स जमा कराने और दीगर अदालती शराइत की पाबंदी आयद की जा सकती है। बाज़ सूरतों में कौमी शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट ब्लॉक करने, इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त करने या ऑनलाइन सरगर्मियों पर पाबंदी की सिफारिश भी की जा सकती है। अपोजिशन जमातों, कानूनी माहिरीन और इंसानी हकूक की तंजीमों का कहना है कि बिल में समाज मुखालिफ रवैये की तारीफ बहुत वसी और मुबहम रखी गई है, जिससे इसके गलत इस्तेमाल का खदशा पैदा होता है। उनके मुताबिक किसी शख्स को बाकायदा सजा सुनाए बगैर सिर्फ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स या इब्तिदाई इल्जामात की बुनियाद पर मुख्तलिफ पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, जो बुनियादी इंसानी हुकूक और कानूनी तकाज़ों से मुताबिकत नहीं रखता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली राना आफ्ताब का कहना है कि इस कानून के जरिए इंतजामिया को गैर मामूली इख्तियारात दिए जा रहे हैं, जिन्हें सियासी मुखालफिन के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं देख लेता हूं। आप सर इसको देखें, ये सब मेरे भाई जो उधर बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, ये आपने अभी खुद ही कहा है कि ये तो एक छोटे से एक्ट पे फंस जाएंगे। आपने इसका जवाब दिया है कि 1908 मुझे राना साहब, क्योंकि मैंने अभी इनको ये असेंबली सेक्रेटेरिएट को सीरियस कंसर्न का इजहार किया है कि अगर बिल चाहे वो ऑपोजिशन मेंबर का है या गवर्नमेंट का है, मुझे आपने उसको देना तो है ना, मेरी नजर से गुजरा ही नहीं है। लेट मी चेक इट। कागज गुजरा है मेरी नजर से, वो है ये है वे, ये हमने ना एक नया आप लॉ ला रहे हैं विच इज़ वेरी, मेरा ख्याल एम्बिशियस भी है और बड़ा नुकसानदेह है, और वो ये है कि सच हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंटी सोशल बिहेवियर। सर इसमें देखा विच मे बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट अथॉरिटीज। Such ambiguity opens the doors to selective application against political workers, journalists, protesters, trade unions, and other citizens. Sir, then second is the excessive power given to the police in this. ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी खदशा जाहिर किया है कि बिल की मौजूदा शक्ल इंतजामिया को वसी इख्तियारात देती है, जबकि मुनासिब अदालती निगरानी और कानूनी तरीक़ाकार की जमानत वाज़ेह नहीं। दूसरी जानिब हुकूमत इन एतराज़ात को मुस्तरद करती है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून खालिद महमूद रांझा का कहना है कि इस कानून का मकसद सिर्फ ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई करना है जो मुसलसल जराइम और समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस रहते हैं। उनके मुताबिक किसी भी शख्स को आदी मुजरिम करार देने का हतमी इख्तियार सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास होगा। मुतासरा शख्स को अपना मौक़िफ़ पेश करने और अदालती फैसले के खिलाफ अपील करने का हक भी हासिल होगा। हुकूमत का कहना है कि यह कानून सजा देने के लिए नहीं बल्कि जराइम की बर वक्त रोकथाम और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तजवीज़ किया गया है। अब चूंकि बिल दोबारा कायमा कमेटी को भेज दिया गया है, इसलिए आइंदा चंद हफ्तों में यह वाज़ेह होगा कि आया इसमें तरमीम की जाएंगी या हुकूमत इसे मौजूदा या तरमीम शुदा शक्ल में दोबारा पंजाब असेंबली से मंजूर कराने की कोशिश करेगी। राना साहब ये कह रहे हैं कि आप DC और DPO को ये इख्तियार देंगे कि वो ये तय कर दें कि किस शख्स को कौन शख्स डिजायरेबल नहीं है। तो आप ये इख्तियार दे रहे हैं, वाकई दे रहे हैं? सर ऐसे ही है, लेकिन सर उसका चले ठीक है, ऑलमोस्ट पहले भी DC ही, क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूं क्योंकि वो ये कह रहे हैं। मुंबई पुलिस ने मुहर्रम के जुलूस के दौरान मुबैना तौर पर चूहे मार जहर वाले कैप्सूल तकसीम करने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बाइकला पुलिस ने जुलूस के दौरान मुश्तबा सरगर्मियों में मुलव्वस एक शख्स को हिरासत में लिया है। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से तकरीबन 15,000 मुश्तबा जहरीले कैप्सूल बरामद हुए हैं। मुलजिम का दावा है कि ये कैप्सूल पेन किलर अद्वियात हैं। ताहम पुलिस के मुताबिक एक शख्स ने ये कैप्सूल खाने के बाद मतली और कैग की शिकायत की थी। वाक़े के
बाद मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों जिनमें आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी शामिल है ने इस मामले को इंतहाई संगीन करार देते हुए मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। मुंबई पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार मुलजिम ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया है कि उसका मकसद मुहर्रम के जुलूस में शरीक अफराद को निशाना बनाना और नुकसान पहुंचाना था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 50 किलोग्राम जिंक फास्फेट और 30,000 खाली कैप्सूल खरीदे थे। इसके कब्जे से मजमूई तौर पर 14,900 कैप्सूल बरामद किए गए हैं। रात को बाइकला पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में मुहर्रम का प्रोसेशन निकल रहा था। वहाँ पर मुंबई पुलिस के टीम को एक संशयित व्यक्ति मिला जो कि कैप्सूल्स बांट रहा था। उसके पास किसी भी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी और बहुत ही डाउटफुल दिख रहा था। तो उसको रोक के पूछा गया और उसकी सारी जो कैप्सूल्स हैं वो जब्त की गई और साथ ही में उसकी डिटेल्स जैसे कि आधार कार्ड और उसका पासपोर्ट नंबर और उसका मोबाइल नंबर ये सभी रजिस्टर की गई। सुबह 4 बजे पुलिस स्टेशन में एक MLCI जिसके अंदर सलमान सैयद नाम के व्यक्ति की तबीयत ख़राब होने का जिक्र था, उसको उल्टी और उसको पेट दर्द ऐसी शिकायतें थी और उसने मेंशन किया था कि उसने इस प्रोसेशन में बट रही एक कैप्सूल का सेवन किया है। इमीडिएटली लिंकअप करके मुंबई पुलिस की टीम्स तैयार की गई और इस व्यक्ति को ढूंढ के निकाला गया और जब इसको पुलिस स्टेशन लाया गया तो इसने कबूल किया कि इसकी एक साजिश है और इसने इस प्रोसेशन को टारगेट किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाने की इसने कोशिश करी। इस साजिश के तहत इसने 50 किलो जिंक फॉस्फाइड नाम का केमिकल ये प्रोक्योर किया और 30,000 MT कैप्सूल्स ये भी प्रोक्योर करी। पिछले 15 दिनों से ये मुंबई में मुक्काम करके उन कैप्सूल्स में जिंक फॉस्फाइड भर रहा था और अल्टीमेटली ये सारी कैप्सूल तैयार करके इसकी तैयारी थी कि ये मुहर्रम में लोगों को बांटेगा ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ पेन किलिंग मेडिसिन। बट ड्यू टू द अलर्टनेस ऑफ मुंबई पुलिस एंड द हार्ड वर्क ऑफ मुंबई पुलिस, गुड डिटेक्शन बाय मुंबई पुलिस, ये बहुत बड़ा हादसा टाला गया है और एक मास कैजुअलिटी कह लीजिए वो टली है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के रहनुमा हुसैन दलवी ने वाक़े की मुकम्मल गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई संगीन मामला है। इस वाक़े की तह तक पहुँचना और इसके जिम्मेदार अनासर की निशानदेही करना बेहद ज़रूरी है। जब किसी मजहबी त्यौहार या जुलूस के दौरान इस नौयत के वाक़यात पेश आएँ तो ये इस बात की अक्कासी करता है कि मुआशरे में नफरत में इजाफा हुआ है। ताहम पुलिस की तहकीकात अभी जारी हैं और अब तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि मुलजिम इस कार्रवाई के ज़रिए क्या हासिल करना चाहता था और उसके मुहर्रकात क्या थे। सामीन, वेस्पा सिर्फ एक स्कूटर नहीं बल्कि एक ऐसा नाम है जो गुज़िश्ता 8 दहाइयों से आज़ादी, अंदाज और नफासत की अलामत समझा जाता है। जंग अजीम दोम के बाद तबाह हाल इटली में जन्म लेने वाला ये छोटा सा स्कूटर देखते ही देखते एक आलमी सकाफती और फैशन आइकॉन बन गया। आज दुनिया के करोड़ों अफराद के लिए वेस्पा महज सफर का जरिया नहीं बल्कि एक तर्ज़े जिंदगी, एक शनाख्त और एक जज्बे का नाम है। आखिर इस स्कूटर में ऐसी क्या खास बात है कि दहाइयां गुजरने के बावजूद इसकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई? ये कैसे जंग ज़दा इटली की ज़रूरत से निकलकर हॉलीवुड, फैशन की दुनिया और दुनिया भर के शहरों की सड़कों तक पहुंचा? आज गजनफर हैदर से हम जानेंगे वेस्पा की दिलचस्प तारीख, इसके मुनफरिद डिज़ाइन के पीछे छुपे राज और वो हैरान कुन हकाइक जिन्होंने इसे दुनिया के मकबूल तरीन क्लासिक स्कूटरों में शामिल कर दिया। अतालवी स्कूटर वेस्पा की 80वीं सालगिरह के मौके पर रोम में एक गैर मामूली मंजर देखने में आया, जहां 10,000 से ज़ायद वेस्पा स्कूटर शहर के तारीखी मरकज़ में जमा हुए। कोलोसियम और रोमन फोरम के सामने से गुजरते इन स्कूटरों ने चंद लम्हों के लिए फरारी और डकाटी जैसी मशहूर ब्रांड्स को भी पसे पुश डाल दिया। ये शायकीन सिर्फ इटली से नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फ़िलिपीन समेत कई ममालिक से यहाँ पहुँचे थे। वेस्पा का जन्म भी एक इत्तफाक था। दूसरी आलमी जंग के बाद जब इतालवी कंपनी पियाजो का तैयारा बनाने वाला कारखाना बमबारी से तबाह हो गया तो कंपनी ने तैयारों के बजाय स्कूटर बनाना शुरू कर दिए और यही छोटा सा स्कूटर आगे चलकर इटली की मईशत को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करने में मददगार साबित हुआ। पियाजो के मुताबिक सन 1940 से अब तक दुनिया भर में तकरीबन 2 करोड़ वेस्पा फ़रोख्त हो चुके हैं
और ये स्कूटर आज 110 ममालिक में दस्तयाब हैं। कंपनी के मुताबिक इब्तदा में ख़वातीन भी इसी की ख़ास ख़रीदार थीं, क्योंकि वो लंबे लिबास में भी आसानी से इसे चला सकती थीं, और यही सहूलत इसके डिज़ाइन में आज भी झलकती है। वेस्पा की आलमी शोहरत को सन 1953 की फ़िल्म रोमन हॉलिडे ने उरूज पर पहुंचा दिया, जिसमें ग्रेगरी पेक और ऑड्रे हेपबर्न इसी स्कूटर पर रोम की सैर करते दिखाई दिए। बहुत से शायकीन का कहना है कि ये स्कूटर इन्हें एक गुजरे हुए दौर की याद दिलाता है, एक ऐसे दौर की जिसे उन्होंने खुद देखा भी नहीं। तो वेस्पा महज एक सवारी नहीं, बल्कि बरसों से चली आई एक रिवायत है, स्टाइल, आज़ादी और सादगी की। शायद यही वजह है कि 80 बरस बाद भी इस छोटे से स्कूटर की गूंज रोम की पथरीली गलियों में उतनी ही बुलंद है जितनी कि 60 और 70 की दहाई में थी। मशहूर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने सार्फिन की प्राइवेसी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए एक नया यूज़र नेम फीचर मुतारिफ कराने का ऐलान किया है, जिसके तहत सार्फिन अपना मोबाइल नंबर शेयर किए बगैर भी दूसरों से राब्ता रख सकेंगे। कंपनी के मुताबिक सार्फिन व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाकर अकाउंट के जरिए अपना मुनफरिद यूज़र नेम मुंतखब कर सकेंगे। इसके बाद दूसरे सार्फिन सिर्फ उसी यूज़र नेम की मदद से उन्हें तलाश करके पैगाम भेज सकेंगे, जबकि उनका फ़ोन नंबर जाहिर नहीं होगा। ताहम व्हाट्सएप अकाउंट बनाने और रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर बादस्तूर जरूरी रहेगा। व्हाट्सएप का कहना है कि यूजर नेम ज्यादा से ज्यादा 35 हरूफ पर मुश्तमिल होगा। इसे बाद में तब्दील या हज़फ भी किया जा सकेगा, जबकि हर यूजर नेम मुनफरिद होगा और अगर कोई नाम पहले से इस्तेमाल हो रहा हो तो ऐप इसकी इतला देगा। कंपनी के मुताबिक ये फीचर आइंदा चंद माह के दौरान मरहलावार दुनिया भर के तकरीबन 3 अरब सार्फिन के लिए दस्तयाब होगा और व्हाट्सएप बिजनेस सार्फिन भी इससे फायदा उठा सकेंगे। व्हाट्सएप ने वाज़ेह किया है कि मारूफ शख्सियात और आला सरकारी ओहदेदारों के नाम आम सार्फिन के लिए दस्तयाब नहीं होंगे, ताकि जालसाजी और धोखाधड़ी से बचा जा सके। कंपनी का कहना है कि नए फीचर के साथ स्पैम और फ्रॉड की रोकथाम के लिए हिफाजती इजाफी इकदामात भी किए गए हैं, जिनमें नए राब्तों की हद मुकर्रर करना, मशकूक सरगर्मियों की खुदकार निशानदेही और सार्फिन के लिए रिपोर्ट करने की सहूलत भी शामिल है। व्हाट्सएप के मुताबिक अगर ये फीचर अभी तक किसी सारिफ को नजर नहीं आ रहा तो वो अपनी ऐप को ताज़ा तरीन वर्जन पर अपडेट करें, क्योंकि ये सहूलत मरहलावार तमाम सार्फिन तक पहुंचाई जा रही है। व्हाट्सएप के इस ऐलान के बाद सार्फिन ने जहां इसे प्राइवेसी के लिए बेहतरीन फीचर करार दिया तो कई सार्फिन इसका मवाजना टेलीग्राम और सिग्नल से करते नजर आए हैं। ये व्हाट्सएप लाया एक नया फीचर, यूजर नेम्स। बस अपना यूजर नेम बताओ और अपनी प्राइवेसी पे अपना कंट्रोल बढ़ा। जल्दी से अपना यूजर नेम क्रिएट कर लो, मेक योर मूव। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल फोन देखना और रात सोने से पहले आखिरी बार स्क्रीन पर नजर डालना आज बहुत से लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का ये हिस्सा बन चुका है। पैगामात, सोशल मीडिया, ईमेल्स और मुसलसल आने वाले नोटिफिकेशंस के दरमियान शायद ही कोई लम्हा ऐसा होता होगा जब हम मुकम्मल तौर पर ऑफलाइन हो। लेकिन अगर अचानक 2 दिन के लिए मोबाइल फोन और इंटरनेट से मुकम्मल दूरी इख्तियार कर ली जाए तो क्या होगा? क्या ये ज़हनी सुकून देगी या बेचैनी में इजाफा करेगी? भारत के शहर हैदराबाद में रहने वाली दिव्या ने यही तजुर्बा किया। आइए जानते हैं कि उनका 2 रोज़ा डिजिटल डिटॉक्स कैसा रहा और इस दौरान उन्होंने कैसा महसूस किया। मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर रही हूँ, फ़ोन ही मुझे यूज़ कर रहा है। मैं पहले अपने फ़ोन को अपने आप से दूर रखूँगी। अब मैं इस फ़ोन को यूज़ करने वाली हूँ। इन 2 दिनों में मैं सिर्फ इसी फ़ोन को यूज़ करूँगी, जिसमें मेरी सिम निकाल कर इसमें से मैं इसमें डालने वाली हूँ। हमारी दुनिया मानो जैसे हमारे स्मार्टफोन्स के भीतर बसती है और हर एक स्वाइप और क्लिक की रफ्तार से चलती है। किसी से बात करना, नए रिश्ते बनाना, काम करना या फिर सुख दुख और गुस्से का इजहार, सब कुछ जैसे स्क्रीन में सिमट कर रह गया है। मगर इस स्क्रीन की चमक दमक से दूर और शाइनिंग फीड्स के पीछे हम और आप कौन हैं? क्या हम स्मार्टफोन और इंटरनेट के बिना एक दिन रह सकते हैं? आइए हमारे साथ मिलने उनसे जिन्होंने अपने फोन से बनाई दूरी और हमसे साझा की अपनी डिजिटल डिटॉक्स डायरी। दिव्या, आप डिजिटल डिटॉक्स करने जा रही हैं, तो डिजिटल डिटॉक्स जर्नी पर जाने का ख्याल कैसे आया आपको? कुछ टाइम पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत ही ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रही हूँ और मुझे कहना चाहिए कि मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर रही हूँ, फ़ोन ही मुझे यूज़ कर रहा है। एंड मेरा जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 8 घंटे के करीब, जो कि बहुत ज़्यादा है।
جب میں آفس میں ہوں تب بھی لیپ ٹاپ میرے سامنے ہے, میرے سامنے کام ہے, تب بھی میں اپنا فون اٹھا کر یہ دیکھ رہی ہوں کسی نے مجھے میسج کیا, کال کیا. سو اسی لیے میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے ڈیجیٹل ڈیٹاکس پہ جانا چاہیے. شروع کرنے کے لیے 48 آورس سے میں پہلے اپنے فون کو اپنے آپ سے دور رکھوں گی. اب میں اس فون کو یوز کرنے والی ہوں. ان 2 دنوں میں میں صرف اسی فون کو یوز کروں گی جس میں میری سم نکال کر اس میں سے میں اس میں ڈالنے والی ہوں. یہ میرا فون ہے جو کہ اب مجھ سے دور رہے گا, اور یہ فون میرا ڈیجیٹل ڈائری کی طرح کام کرے گا. اس میں اپنے 2 دن پورے ریکارڈ کروں گی کہ میں کیسے کیا کر رہی ہوں, مجھے کیسا فیل ہو رہا ہے اور میرا ایکسپیرینس کیسا رہا. So this is day 1. I just woke up and now I'm thinking to go for a walk and then come back and take a shower because I can't scroll reels or anything. Normally I do that first and then I go for a walk, but now I'm skipping that part today. मैं वॉक के लिए आ तो गई हूँ बिना ईयरफोन्स के, पर इतनी ज़्यादा धूप है और आसपास की चीज़ों की भी आवाज़ें आ रही हैं. I'm really missing my earphones. कल से जल्दी आना पड़ेगा मुझे. Yeah, so now my roommate has booked Uber for me because I'm on this digital detox. भैया एंट्री करनी है. मैडम डिजी कैंपस में एंट्री करनी. डिजी कैंपस फ़ोन नहीं है मेरे पास. I don't have Uber, so I asked my roommate to book Uber for me. She booked the Uber. I also don't have cash. So I asked her कि can you please pay right away? So उसने उसी टाइम पे पे कर दिया. फिर जब मैं अंदर आ रही थी ऑफिस में, then I realized कि उनके पास एक ऐप है नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं जिसके थ्रू तुम्हारी एंट्री होती है so that they can check that who is this person. I don't have that app. So again I had to show them my physical ID. So this was new. This was something जो मैंने सोचा नहीं था पहले. But it was not that tough, I think. So yeah. Now I'm doing workout. Let's see. ऐसा लग रहा है कि मेरे पास दुनिया का सारा टाइम है. And the more this day is passing, मुझे lonely और depressed सा feel हो रहा है. Like I don't have anyone's number. I didn't save anyone's number except the fact that मुझे अपने पेरेंट्स का नंबर याद है. Plus I have 2-3 emergency numbers written on the notepad. But किसी ने मुझे कॉल ही नहीं किया. Like somehow हमारा फोन हमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील कराता है सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक. मतलब जितना हमें लग रहा है कि हम इन सब चीज़ों को अगर इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा एग्जैक्टली में कुछ भी नहीं है. किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. यू कैन जस्ट चिल एंड यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन योर थिंग्स. एंड अभी इतना सब बोलने के बाद फाइनली आई विल डू द थिंग जिसके लिए मैंने ये सब कहानी करी है, डिजिटल डिटॉक्स के बारे में सोचा है, विच इज़ स्टडी. अभी आई विल स्टडी. नॉर्मली जब भी मुझे ऐसा कुछ पढ़ना होता है तो मैं क्या करती हूँ, जस्ट लाइक एनी अदर जेन ज़ी, आई गो ऑन चैट जीपीटी, आई गिव इट द एंटायर पीडीएफ एंड द चैप्टर जो भी होता है, एंड देन आई आस्क इट कि भाई मुझे इसकी समरी दे दो, मुझे इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा दो एंड ऑल. बट आज मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था, तो आई थॉट क्या हम खुद से पढ़ेंगे. ऑप्शन नहीं है तो पढ़ना पड़ेगा. तो आई स्टार्टेड, बट देन आई रियलाइज कि माई ब्रेन इज़ एक्चुअली रोटन, लाइक नेक्स्ट लेवल रोटन. ये वो सेम दिमाग है जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सॉल्व करता था, लाइक लिटरली. जैसे गर्मी की, जैसे बचपन में गर्मी की छुट्टियों में लाइक दोपहर में मम्मा सो जाती है एंड फिर पूरा बोरिंग हो जाता है ना कि अभी क्या करें, मम्मा भी सो गई
मम्मा को परेशान नहीं कर सकते और पापा भी नहीं है, पापा भी अपने ऑफिस गए हैं, तो अभी करें क्या? मतलब वो वाला जो बोरियत होता है ना, जो वो वाली बोरिंग एंड अजीब सी फीलिंग होती है ना, आई एम हैविंग दैट फीलिंग राइट, like literally, and I don't know what to do. When I came here, I thought that I will just study for my exam and I will give my exam and all. And I just somehow kept giving myself an excuse that I'm busy. But now I'm realizing that I'm not busy. I was never busy. I was like, we can never busy for something which is important for us. Feel that I am very important for people, that people are very important for me, that replying to them in 2 seconds is very important, that checking my phone after every minute is very important, but these things are never an excuse to avoid something which is necessary for you or which is important for you, or it will actually help you build yourself. Good morning, Divya. So it's been 48 hours and this is your phone finally. कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बट अभी इतना ज़्यादा क्रेविंग नहीं हो रही थी मुझे, तो अभी इसका काम अलग हो जाएगा, बट अच्छा लग रहा है. तो अब आप इसको यूज़ करना चाहेंगी या नहीं? यूज़ करना चाहूँगी, पर पहले की तरह, मतलब जैसे पहले कर रही थी वैसे नहीं, अलग तरीके से. कैन आई स्विच इट ऑफ माई फोन? अभी ये एक मिनट. कौन सा ऐप है जिस पे सबसे पहले जाना चाहेंगे? व्हाट्सएप पे. क्यों? क्योंकि मेरे को वीडियो कॉल करनी है और चेक करना है कि किसने क्या किया है. चल गया. बताऊंगी बाद में. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, कुछ चीज़ों में ख़राब भी रहा थोड़ा. नींद बहुत अच्छी आई, ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा. और मैंने फाइनली बुक स्टार्ट की, पढ़ाई स्टार्ट की, ये सब एक्सपीरियंस अच्छा रहा. पर कैश नहीं है या फिर पेमेंट नहीं कर पा रही हूँ, ऊबर बुक नहीं कर पा रही हूँ, इन सब चीज़ों की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे. एट सम पॉइंट्स मुझे बहुत लोनली फील हो रहा था, क्योंकि मैं अपने दोस्तों, जो ये कीपैड फ़ोन था उसमें नंबर नहीं थे किसी के भी, तो द ओनली पीपल हु आर कॉलिंग मी, मैं उन्हीं से बात कर पा रही थी. तो मुझे कुछ पॉइंट पे लग रहा था कि मैं इसको कॉल कर लेती हूँ या वीडियो कॉल कर लेती हूँ या फिर कुछ देख लेती हूँ. मतलब लाइफ में क्या चल रहा है उनके मुझे पता नहीं है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मैं उन्हें बता नहीं पा रही हूँ. बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल आइसोलेटेड हो गई हूँ चीज़ों से. तो वो चीज़ थोड़ी सी लग रही थी, बट एट द सेम टाइम आई कुड स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ. और मैं काफ़ी चीज़ें जो मतलब मैंने बहुत टाइम से पेंडिंग रखी हुई थी, मैं उनको ओपन कर पाई, बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेस कर पाई, तो वो चीज़ अच्छी थी. 8 आवर्स तुम्हारा स्क्रीन टाइम है, उस चीज़ पे चले जाना इज़ नॉट वर्थ इट. एंड रिग्रेट इज़ द वर्स्ट थिंग टू डू इन लाइफ, बट इन रियलिटी वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम. एंड वंस यू लीव योर फोन यू विल रियलाइज़ कि सारी दुनिया का टाइम तुम्हारे पास आ गया है. फुटबॉल वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में पैराग्वे ने जर्मनी, जबकि मराकश ने नीदरलैंड को पेनल्टी शॉट आउट में शिकस्त देकर अगले मरहले में जगह बना ली है. 4 मरतबा के आलमी चैंपियन जर्मनी को पैराग्वे ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेनल्टी शॉट आउट में 3 के मुकाबले पर 4 गोल से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है. मुकर्ररा और इजाफी वक्त के इख्तिताम तक भी मुकाबला 1-1 से बराबर था, जिसके बाद फैसला पेनल्टी शॉट आउट पर हुआ. दूसरी जानब मराकश ने भी एक बड़े अपसेट में नीदरलैंड को पेनल्टी शॉट आउट में शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है. नीदरलैंड ने दूसरे हाफ में बर्तरी हासिल की थी, ताहम मराकश ने इख्तितामी लम्हात में गोल करके मैच बराबर कर दिया. इस पर इजाफी वक्त दिया गया, लेकिन इसमें भी कोई गोल ना हो सका. फिर पेनल्टी शॉट आउट में मराकश ने कामयाबी हासिल कर ली और यूं जर्मनी की तरह नीदरलैंड भी फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है.
इटली के शहर ब्रेशा की मेयर लौरा कास्तिलेती ने पार्क में बच्चों को हमला आवर से बचाने वाले पाकिस्तानी नवीद असलम के एजाज में तकरीब मुनक्कद की और उनकी जुर्रत और शहरी जिम्मेदारी के एतराफ में यादगारी शील्ड से नवाजा। 26 जून को मुनक्कद होने वाली इस तकरीब में मेयर का कहना था कि नवीद असलम हीरो ऑफ ब्रेशिया हैं। मेयर ने अपने खिताब में कहा कि मैं नवीद असलम की बहादुरी, जुर्रत और इंसानी दोस्ती पर खराज तहसीन पेश करती हूँ। उनका कहना था कि नवीद असलम ने साबित किया कि इतालवी कम्युनिटी बेदार और इंसान दोस्त है जो हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देती है। मज़ीद तफसील आज के CBC रीड्स में, जिसे तहरीर किया है मोहम्मद जुबैर खान ने, जबकि पेश कर रहे हैं उमर आफरीदी। इटली के शहर ब्रेशा में वाक़े अल्बेरिनी पार्क में मौजूद अफराद, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की थी, दहशत ज़दा हुए। पार्क में मौजूद एक शख्स ने दूसरे शख्स को इस अंदाज से दबोच रखा था कि वो हिलजुल नहीं पा रहा था। बाद अज़ां उसकी शनाख्त एक नाइजीरियन शहरी के तौर पर हुई जिसकी उम्र 29 साल है। इटली में वो कानूनी तौर पर रह रहा था, जबकि उसे काबू में लाने वाले थे पाकिस्तान के शहर गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले नवीद असलम। इटली की नेशनल एसोसिएटेड प्रेस एजेंसी के मुताबिक नाइजीरियन शहरी ने पार्क में खेलकूद में मसरूफ 2 बच्चों की यके बाद दीगरे गर्दनें दबोचने की कोशिश की थी। एक बच्चा उसकी गिरफ्त से बच निकला तो उसने करीब ही साइकिल चलाते दूसरे बच्चे को दबोच लिया। इटली के ज़राए अबलाग में नवीद असलम की जुर्रत को खास कवरेज मिली और मुतादिद चैनल्स ने उनके इंटरव्यू नशर किए हैं। नवीद असलम बताते हैं कि इटली में मामूली से ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और दीगर लोगों की तरह वो भी शाम के वक्त अपनी बीवी और बच्चों के साथ पार्क में थे। उनके मुताबिक वो और उनकी बीवी बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे, जबकि उनके बच्चे साइकिल चला रहे थे और झूले झूल रहे थे। इतने में पार्क की एक जानिब शोर सुनाई दिया। देखा तो एक शख्स ने साइकिल पर सवार एक बच्चे को गर्दन से पकड़कर उठा रखा था। नवीद के मुताबिक इस हमले के दौरान बच्चे ने साइकिल का हैंडल नहीं छोड़ा, मगर वो शख्स लगातार बच्चे की गर्दन को मरोड़ता रहा। इतने में बच्चे की मां दौड़ती हुई आई और थोड़ी धींगा मुश्ती के बाद उस शख्स ने बच्चे को छोड़ दिया। नवीद ने बताया कि फिर उस शख्स ने चलना शुरू कर दिया। वो अपने आप से बातें भी करता जा रहा था। फिर उसने अचानक जमीन पर बैठकर जोर जोर से मुक्के मारना शुरू कर दिए, जिससे उसके अपने हाथ जख्मी हो गए। फिर अचानक उठकर एक दूसरे बच्चे की गर्दन मरोड़ना शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि पार्क में मौजूद बच्चे चीख रहे थे, बहुत सी माएँ और लोग खड़े देख रहे थे, मगर कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। नवीद कहते हैं कि उस शख्स को रोकने के लिए जब उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया तो उनकी बीवी ने उन्हें रोका और कहा कि उसके पास असलाह हो सकता है, आपको पेस मेकर लगा हुआ है, कोई नुकसान पहुंच सकता है। नवीद बताते हैं कि उन्होंने अपनी बीवी को फौरी तौर पर पुलिस हेल्पलाइन कॉल करने को कहा और आगे बढ़कर उस शख्स को दबोच लिया। उस शख्स ने बच्चे को छोड़ दिया और खुद को नवीद की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी। नवीद ने उसे मजबूती के साथ अपनी टांगों के बीच जकड़ लिया था। यूं उसकी तमाम कोशिशें राय कर गई। अलबत्ता नवीद के सीने में दर्द उठने लगा। इस कश्मकश में नवीद के घुटने, बाजू और कोहनियां भी घायल हो गईं। पुलिस खासी देर के बाद पहुंची और कुछ मुज़ाहमत के बाद उस नाइजीरियन शहरी को काबू कर लिया। नवीद की इस जुर्रत के एतराफ़ में शहर की मेयर लौरा कास्टिलेती ने उनके लिए अवार्ड का ऐलान किया। BS न्यूज़ के मुताबिक म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने नवीद असलम को एजाज़ देने का फैसला इसलिए किया कि उन्होंने मज़ीद संगीन नताइज की राह रोकने में मदद दी और उनकी बरवक्त मुदाखलत के बायस हमलावर को काबू में कर लिया गया और उन्होंने हमलावर को उस वक्त तक रोके रखा जब तक पुलिस ना पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा हमलावर मनशियात के सिलसिले में पहले ही पुलिस के रिकॉर्ड पर था। इस वाक़े के बाद ब्रेशा की मेयर लौरा कास्टिलेती ने तबसरा करते हुए कहा कि अल्बेरिनी पार्क में जो कुछ हुआ वो नहायत संगीन वाक़ा है, जिससे हमारी कम्युनिटी को गहरा सदमा पहुंचा है। इस मामले में मुलविस शख्स का इटली का रिहायशी परमिट मनसूख करने और उसे मुल्क बदर करने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। नवीद असलम सन 2018 से इटली में मुस्तकिल वीज़े पर मुकीम हैं। वो 4 बच्चों के वालिद हैं और उनकी बीवी पाकिस्तानी नजात इटालियन शहरी हैं। नवीद असलम को चंद माह कबल अचानक बेहोश हो जाने के बाद पेसमेकर लगाया गया था। वो बताते हैं कि उनकी कार सड़क पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से फंस गई थी जब उन पर बेहोशी का दौरा पड़ा। उनका कहना था कि ट्रैफिक खुल गई मगर उनकी गाड़ी खड़ी रही। तब किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और वो 7 दिन अस्पताल में रहे। तमाम टेस्ट हुए मगर बेहोशी की वजह सामने ना आ सकी तो डॉक्टरों ने एहतियाती तौर पर पेसमेकर लगा दिया। वो कहते हैं कि उनके लिए बड़ा एजाज़ वो नहीं जो सरकारी है, बल्कि जब पुलिस हमलावर को पकड़ चुकी तो वहाँ मौजूद अफराद ने उनके लिए तालियां बजाईं, जो सबसे बड़ी बात थी।
मोहम्मद जुबैर खान की इस तहरीर के साथ ही आज का सहरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से पहले अब तक की खास खबरें। कतर की वजारत खारजा ने तस्दीक की है कि अमरीकी सदर के खसूसी एलची बराए मशरक़ वस्ता स्टीव विटकोफ और दामाद जेरेड कुशनर ईरान और अमरीका मुज़ाकरात पर कतरी सालिसों से बातचीत के लिए दोहा पहुंच गए हैं। खबर रसा इदारे रोटर्स के मुताबिक कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान फिलवक्त कोई आला सतही मुलाकात नहीं हो रही। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान ने यह भी कहा कि कतर ने ईरान के मुंजमद $6 अरब तेहरान को मुंतकिल नहीं किए हैं। ईरान के साबिक रहबर आला अली खामनाई की आखिरी रसूमात के इंतजाम जारी हैं। रसूमात की इंतजामिया के सेक्रेटरी अली अकबर के मुताबिक मुजतबा खामनाई की अपने वालिद के जनाजे में शिरकत से मुतल्लिक फैसला रहबर आला के दफ्तर की जानिब से किया जाएगा और अगर कोई बाज़ाबिता ऐलान हुआ तो वो भी वहीं से जारी किया जाएगा। उनका कहना है कि अब तक 30 से ज़ायद ममालिक के रहनुमाओं ने जनाजे में शिरकत की ख्वाहिश जाहिर की है। ईरानी हुकूमत ने 4 से 9 जुलाई तक आखिरी रसूमात का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत तेहरान में अलविदाई तकरीबात, तेहरान और कुम में जुलूस, जबकि 9 जुलाई को मशहद में इमाम रजा के मज़ार के अहाते में तदफीन की जाएगी। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक का कहना है कि उन्होंने इंडिया की क़यादत से अपील की है कि मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत की राह इख्तियार की जाए, क्योंकि बातचीत से ही हल निकलते हैं। उनके दफ्तर से मुंसलिक एक्स अकाउंट पर मौजूद एक वीडियो में उनका कहना था कि इस हफ्ते भी अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर बातचीत होने जा रही है। मैंने हमेशा इसकी हिमायत की है। इस तनाज़र में मैंने पिछले जुमे को भी ये बात कही थी कि अगर ईरान और अमेरिका मेज़ पर आ सकते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान भी मेज़ पर आ सकते हैं।